Yes. Next is interest on drawing. Again, you have to recall interest on drawing in accounting equation. क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? गलत. प्लस एंड माइनस इन कैपिटल. Why this is to be added in capital and why this is to be deducted in the capital? First, it is to be in capital. It was to be added in capital because this is income for the business. Income. Interest on drawing is charged from the proprietor and to be received to the business. So it is our income, and why it is to be deducted from the capital? When there is increase in the drawings, it will decrease our capital. जैसे ही ड्राइंग्स बढ़ेगी वैसे ही अपनी कैपिटल डिक्रीज हो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will increase the drawings and ultimately drawings will decrease our capital. So minus in capital plus in capital, it is income. Now there are two accounts. One is interest on drawings, another is drawings. Interest on drawing will increase our drawing. Interest on drawing our income. Nominal account. What is the nominal account rule says? What is the accounting rule of nominal account? Debit all income and losses, credit all incomes and gains. This is income for the business. Then to be credited, then to interest on drawing. It will increase our drawings. Drawings account is personal account of proprietor. Indirectly, proprietor is receiver of that amount. It is going to his capital account ultimately. He is receiver, then debit. Then drawings account debit to interest on drawing. लिख लो जल्दी से. Next is outstanding expenses. Earlier we have seen outstanding expenses in accounting equation. What is the accounting treatment in accounting equation for the outstanding expenses? It will increase or decrease the liability. It will increase the liability. And another point, it is two places we have to show the outstanding expenses in accounting equation. Another place, decrease in capital because this is your expense. Every expense and losses will decrease your capital while income will increase the capital. तो कैपिटल को डिक्रीज करता है क्योंकि एक्सपेंस. देन फर्स्ट देयर आर टू अकाउंट व्हेन देयर इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फर्स्ट इज एक्सपेंसेस वन अकाउंट एंड एक्सपेंसेस मींस नॉमिनल and another is outstanding expenses. What is the nature of outstanding expenses? Personal, real or nominal? Or outstanding expenses is representative personal account. It is called representative means
This expense represents the person to whom it is due. जिसको देना बाकी है उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग रेंट, it represents the landlord. Then outstanding expenses is personal account. It is representative personal account. Yes, expense. What nominal account rule says? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. It has given expense, then it should be debited or credited. Then expense account is to be debited. Then person जिससे आपने मकान किराए पे लिया उसका अकाउंट है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब उसके अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट? वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एल्स. वी हैव नॉट पेड टू लैंडलॉर्ड. हमने लैंडलॉर्ड को कुछ दिया नहीं है अभी तक. वाई? इससे क्या मतलब? अरे पे तो किया ही नहीं. वी हैव नॉट पेड एनी रेंट. Listen, outstanding expense, that person is giver of his services but amount is yet to pay, so it is outstanding. अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो उस लैंडलॉर्ड की सर्विसेज अपन ले रहे हैं, मकान में रह रहे हैं उसके मकान में. अरे लायबिलिटी तो होगी, वो डिफरेंट. सुनो पहले यार, पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं. पर्सनल अकाउंट का रूल तो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर अपन इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या गिवर है क्या ये फॉलो तो होना चाहिए ना. ये बात क्लियर तो होना चाहिए कि ये गिवर क्यों है. दैट पर्सन इज गिवर ऑफ हिज सर्विसेज बट अमाउंट हैज नॉट बीन पेड. वो अपनी सर्विसेज दे रहा है पर हमने अमाउंट पे नहीं किया उसको. देन एक्सपेंसेस इज टू बी डेबिटेड बिकॉज इट इज नॉमिनल अकाउंट. And nominal account rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And outstanding expenses, it is representative personal account. That person is giver of his services. Giver, personal account rule says debit the receiver, credit the giver. Then credit. Then our expenses account debit to outstanding expenses for the outstanding expenses. Next is prepaid expenses. What is the meaning of prepaid expenses? This is your expense or not? No. What is the definition of expense? Expense means something we have consumed. We have consumed the services. Then it is your expense. Prepaid expenses means paid in advance. We have paid the amount but not consumed. It is to be consumed in future. That is prepaid expense. कंज्यूम किया क्या आपने? फिर एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता. फिर एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो क्या करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस में. व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? अरे याद करो भाई, सबको कराया अकाउंटिंग. हाँ, और फिर दो जगह तो नहीं हो सकता ना. कैश विल डिक्रीज. पे कर रहे हैं, कैश में से डिक्रीज और अलग से कॉलम और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन असेट साइड. असेट साइड. अब देखो यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस व्हेन इट इज पेड. जब अपन पे करते हैं तब तो हम एंट्री करते हैं. सपोज रेंट पेड इन एडवांस, तो जब अपन ने पे किया तो एंट्री हो गई रेंट डेबिट.
cash goes out, credit, rent account debit to cash, 10,000. At the end of the year, it has been discovered that out of 10,000 rupees, 2,000 is not related with the current year. This is related to the next year, but we have paid in current year as advance. हमने इसी साल पे कर दिया, जबकि ये किराया अगले साल का। तो प्रीपेड रेंट कितना हो गया इस 10,000 में? 2,000 is prepaid rent, not the full 10,000 is prepaid. टोटल 10,000 पे किया, 10 में से 2,000 पे अगले साल का है, तो प्रीपेड रेंट कितना हो गया? 2,000। अब देखो क्या करना है। अब आपने तो कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, इसमें से 2,000 पे एडवांस है। अब दो अकाउंट, एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक हो गया एक्सपेंसेस। Expenses is nominal, as we have seen in outstanding expenses, and prepaid expenses account is again representative personal account. उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अपन ने एडवांस में दे दिया। अगर अपन ने मकान किराया एडवांस में दे दिया और पहले अगर खाली कर दिया, तो ये पैसा वापस लेना है या छोड़ के चल जाना है? वापस लेना है, उस पर्सन से वापस लेना है, यानी लैंडलॉर्ड से वापस लेना है। और वी कैन से इन दिस केस लैंडलॉर्ड इज डेटर ऑफ ₹2,000। इससे अपन मांगते हैं 2,000 रुपये, क्योंकि अपन ने रहा तो है नहीं अपन ने उसमें। वी हैव नॉट कंज्यूम द सर्विसेज ऑफ दैट हाउस फॉर ₹2,000। हम उस मकान की 2,000 रुपए की सर्विसेज को कंज्यूम नहीं किया है। अगर सर्विसेज कंज्यूम नहीं किया तो एक्सपेंस नहीं है, तो वो पैसा वापस ले सकते हैं। लेना बाकी है, जिससे पैसा लेना बाकी वो हमारा डेटर है। अब देखो यहां पर आउट ऑफ 10,000 ₹2,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। 2,000 रुपए को अपन ने यूज नहीं किया, इस 10,000 में से 8,000 ही यूज किया अपन ने, तो जो यूज किया वो तो अपना एक्सपेंस है। अब पे तो किया अपन ने 10,000 रेंट, इसमें से कितना रेंट अपन ने हम रह लिए उस किराए में, तो 8,000 ही अपना एक्सपेंस है। तो कितने रुपए का एक्सपेंस नहीं है, तो 2,000 के एक्सपेंस को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेंट अपन इसी की बात कर रहे हैं, रेंट जिसको आपने क्रेडिट किया डेबिट किया 10,000, उसमें से 2,000 को एक्सपेंस नहीं मानना है, कैंसिल करना है। तो अगर अपन ने डेबिट किया 10,000 तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? यस, एक्सपेंस को कैंसिल करना तो अपने लिए इनकम हो गई, और इनकम को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट, तो आ जाएगा टू रेंट। That 2,000 rupees indirectly we have paid to the landlord, which is to be consumed in next year, और अपन ने 2,000 रुपये उसको एडवांस में दे दिया। तो ये 2,000 रुपये कौन रिसीव कर रहा है? यस, then out prepaid rent account debit. Prepaid rent means landlord account debit because it is representative personal account. Debit, then debit rupees 2,000 and 2,000. Then entry is prepaid rent account debit to rent. एक बार दोनों एंट्री देखो, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, अच्छी तरह से देखो पहले। यस, देखो वापस देखो, सबसे पहले है कि अपन ने अपना साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। अपन ने 10,000 रुपये किराया पे किया, इसमें से 8,000 रुपये किराया पूरे साल भर का है, ठीक। 8,000 का किराया तो साल भर का है, और ये जो 2,000 पे किए वो अगले 3 महीने के हैं। कौन से 3 महीने?
अगले साल का अप्रैल, अगले साल का मई, अगले साल का जून। अभी अपन अगले साल, मान लो ये अभी अपना कौन सा टाइम चल रहा है, जुलाई, जुलाई 2020। हमारा साल है 31 मार्च 2021 तक। हमने पे कर दिया 2021 अप्रैल, मई और जून। ठीक है। अब वो 3 महीने तो अगले साल से रिलेटेड है जिसको अपन ने पे कर दिया। अब धीरे धीरे करके अपने पास 31 मार्च आ गया, अपन ने किराया पे कर रखा है। हाँ हाँ, तो अगले साल के लिए दिया है, अब जो अप्रैल में शुरू होगा। 10,000 में से 8,000 तो 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर इस साल का है। ठीक है। उसमें से 8,000 तो अपना खर्च हो गया, क्योंकि अपन ने काम में ले लिया। 31 मार्च 2021 तक अपन ने मकान में रह लिए, तो 8,000 रुपये तो अपन ने काम में ले लिए, तो अपने लिए एक्सपेंस हो गया। वो जो 2,000 बचे वो तो अगले साल के हैं। अभी अगले साल का मतलब अब फ्यूचर में रहेंगे अपन उस मकान में। पे तो पहले कर दिया, पर रहेंगे बाद में। वो एडवांस से पे हो गया 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये तो अपने, हाँ, 2,000 प्रीपेड रेंट। तो अब दो अकाउंट हो गया, एक प्रीपेड रेंट और एक रेंट। रेंट तो अपन ने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि उस 2,000 रुपये को कैंसिल करना है। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो 10,000 का खर्चा मान लेंगे अपन, जबकि 10,000 का खर्चा हुआ नहीं। खर्चा कितने का हुआ? तो खर्चा तो 8,000 का ही है, और पेमेंट 10,000 कर दिया, और उसमें अपन ने रेंट को डेबिट कर दिया 10,000 से। डेबिट का मतलब अपन ने मान लिया कि 10,000 रुपये खर्चा है, पर खर्चा कितने का है? 8,000 का। तो 2,000 रुपये कैंसिल कर रहे हैं, तो डेबिट को कैंसिल करना तो उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। सबका क्लियर अभी ये बात? नेक्स्ट, accrued income। Accrued means earned but not yet received। कमा लिया लेकिन मिला नहीं। इस साल में कमा लिया तो इसी साल की इनकम है। देखो अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया, अक्रूड इनकम, तो एक वर्ड तो हो गया इनकम। अब इनकम का क्या करते हैं अपन? इनकम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? अरे इनकम तो रियल हो ही नहीं सकता ना भाई, कौन बोल रहा है? इनकम का मतलब ही है नॉमिनल, और इनकम में नॉमिनल को क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट। अब दो अकाउंट हो गए अपने पास, एक अक्रूड, सपोज इंटरेस्ट, और दूसरा अकाउंट हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज नॉमिनल, अगेन इट इज पर्सनल। Accrued interest is earned not yet received, means this is to be received in next year. First, accrued income, interest is our income, then this account should be debited or credited. Then interest is to be credited. अब देखो, सोचो पहले, बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करा रखा है, 10% इंटरेस्ट, 10,000 इंटरेस्ट अपन ने कमाया, पर अभी बैंक ने अपने अकाउंट में डाला नहीं, अपन को दिया नहीं। इनकम तो हो गई हमारी इस साल की, क्योंकि ये इसी पीरियड से रिलेटेड है। दिस इज आवर इनकम बिकॉज
वो कौन होता है हमारा? डेटर। उससे लेना बाकी है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक को 1 लाख रुपया जमा करा रखा अपन ने और 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी लेना बाकी है, तो बैंक से कितने रुपए निकलाने हैं अपन को? तो और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल और रियल? नॉमिनल। पर्सनल मीन्स इनडायरेक्टली accrued interest is the account of बैंक। बैंक का एक तरह से अकाउंट है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है। इनडायरेक्टली बैंक इज रिसीवर ऑफ दैट अमाउंट। देन accrued interest डेबिट टू इंटरेस्ट 10,000। जितना लेना बाकी है वो सारा। जल्दी कॉपी करो भाई। 1 लाख उससे लिया ही नहीं ना अपन ने, लेना बाकी है। हमने कमा लिया, हमारी इनकम है, उसके पास है। अगर अप्रैल में पैसा देगा तो कितना देगा बैंक अपन को? तो 10,000 से ज्यादा मिलेंगे ना अपन ने जितने जमा कराए। इसलिए कि अभी तो मिला ही नहीं। लेंगे तब रिसीवर होंगे, कि आज तो मिला ही नहीं। अभी तो एक तरह से हमारे पैसे पे बैंक ने रिसीव कर लिया इंटरेस्ट। ऐसे करो जल्दी। और लास्ट, अनर्ड इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनर्ड इनकम? Yes, income received in advance. Work is to be done in next year, but amount has been received. काम तो अपन अगले साल करेंगे। Services are to be provided in next year, but amount has been received in advance. Is it clear? For example, we have received commission rupees 10,000. जब अपन को 10,000 का कमीशन मिला तो अपन ने एंट्री क्या किया? तब अपने पास दो अकाउंट थे, तो अपन ने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000। 10,000 रुपए का कमीशन अपन को मिल गया। अब साल के आखिर में मालूम पड़ा कि इसमें से अपन ने 4,000 का काम तो पूरा किया ही नहीं, अभी 6,000 का ही पूरा किया। 10,000 जो मिला उसमें से 6,000 का काम पूरा हो गया, तो अपनी इनकम कितनी है? Yes, we have completed the work of 6,000, then 6,000 is our income. Remaining 4,000 is our income or our liabilities. Because if work is not completed, then rupees 4,000 is to be refunded. अगर अपन ने बचे हुए 4,000 का काम पूरा नहीं किया तो ये 4,000 रुपये अपन को वापस लौटाने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब अपन को साल के आखिर में मालूम पड़ा कि 4,000 का काम पूरा नहीं हुआ। कितना अमाउंट है जो अपन ने कमा लिया और कितना है जो नहीं कमाया? अब अपन ने कमीशन, जब अपन ने कमीशन को क्रेडिट किया तो अपन ने माना कि 10,000 पे अपनी इनकम हो गई, पर 10,000 की इनकम नहीं हुई ना। अपनी इनकम कितने की हुई? 6,000 की। 4,000 की इनकम को कैंसिल करना है। अब कैंसिल करना तो क्या करें? ये तो अपन ने क्रेडिट किया, डेबिट। अब क्या हो जाएगा? एक अमाउंट हो गया कमीशन, नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा हो गया अनर्न। अगेन पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब उस कमीशन को कैंसिल करना है जो अपन ने नहीं कमाया। कितने का कम नहीं कमाया अपन ने? यस, 4,000 कमीशन अकाउंट डेबिट कैंसिल कर दिया अपन ने। एंड हु इज द गिवर ऑफ दैट एडवांस 4,000?
दैट पर्सन, जिससे आपको कमीशन एडवांस में मिल गया, वो पर्सन गिवर है। गिवर को क्या करते हैं हम लोग? यस। देन टू अनर्न कमीशन 4,000 because that person is giver, and if work is not completed in given time, then this is to be refunded to that person. कितना कितना रिफंड करना पड़ेगा? 10,000, 6,000 या 4,000? 4,000। 4,000। देखो अब कंप्लीट है क्या?